Today, as you all know, we are discussing the second course material of postgraduate diploma in pharmaceutical sales management, which is on pharmacology and toxicology. And now he would be speaking on GCPs. So without taking any more time, I would just request him to please continue. How this GCP words comes in a clinical trial? It was started from the Hippocrates time, and then the Nuremberg Code, then a declaration of Helsinki, then Belmont report in 1979, then the US incorporated its in a IND requirement. IND is a investigational new drugs, and then it comes in a European guidelines for approval of new drugs, then Japanese requirement, and in 1996 it was decided in a ICH, that is International Conference on Harmonization, and they had made certain guidelines. So it is call it as a ICH GCP guidelines from 1996. It is mandatory for regulatory submission for any drugs, almost all the part of the globe, and the benefit of this is that it avoids duplication of a clinical program. Suppose एक क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में चल रही है, तो वैसी ही क्लिनिकल ट्रायल दूसरे किसी सब कॉन्टिनेंट में ना चले. अगर ऐसी क्लिनिकल ट्रायल पास्ट में हो चुकी है एंड दे रिपोर्टेड सर्टेन एडवर्स इफेक्ट और सर्टेन टॉक्सिटी, सो इट शुड नॉट बी गिवन परमिशन टू अ नेक्स्ट वन. सो I have just point out all the topics which subtopics which comes under clinical trial. One is a ADR, adverse drug reaction or adverse event. Audit पैसे का भी ड्रग का भी. CROs, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. वेदर आजकल क्या है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी डायरेक्ट क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर रही हैं, वो एक थर्ड पार्टी को दे रही हैं विच इज कॉल इट एज अ CRO, and they are making a bridge between a clinician and a company and a regulators. Direct access, documentation क्या क्या चाहिए, DSMB, Data Safety Management Board, IRB और IEC. IRB is a institutional review board or institutional ethical committee. Monitoring, quality assurance और quality control. Serious adverse event, जो ऊपर लिखे हुए हैं एडवर्स इवेंट, दे आर नॉर्मल इन फीचर कि नोजिया हो, वॉमिटिंग हुआ, ये हुआ. सीरियस में डेथ हुई तो कोई. SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वेलबींग ऑफ द पेशेंट. देयर आर डिफरेंट स्टेक होल्डर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स. कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्पॉन्सर. स्पॉन्सर इज फार्मास्यूटिकल कंपनी. रेगुलेटरी अथॉरिटी इज FDA or Government of India or Government of USA. Investigator is a physician or surgeon or dentist, and ethics committee which allow them to go ahead or which restrict that it should not be. First is investigator, जो clinician होगा या dentist होगा या physician होगा या surgeon होगा, जो clinical trial करेगा. In the GCP guideline there is one investigator and he can appoint or she can appoint other co-investigator. He should be well qualified and it should be documentary evidence of qualification, training and experience. ऐसा नहीं चलेगा कि मैंने MBBS वहाँ से किया था अब तो कुछ नहीं है. No, it should be with the documentary evidence. Familiarity with the protocol, क्या करना चाहते हैं, and principal investigator, and he should be aware of GCP guidelines and regulation. He should have a capability or potential for recruitment of other staff like lab staff or volunteers or patient. उसके पास टाइम होना चाहिए, टाइम ऑफ द ट्रायल. ऐसा नहीं है कि आपने एक बहुत बिजी फिजिशियन को दे दिया जिसके पास में 500 पेशेंट आते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, उसके पास टाइम ही नहीं है. ही शुड हैव क्वालिफाइड स्टाफ, ऑल लेबोरेटरी स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ. ही शुड हैव एडुकेट फैसिलिटी. एडुकेट फैसिलिटी मीन्स क्लिनिकल एज वेल एज लेबोरेटरी, एंड ही शुड हैव अ मैनेजरियल स्किल्स. The responsibility is the main. He is responsible for the medical care of the subject and care in case of adverse event. कभी कोई adverse event हुआ है तो he is capable for handling that adverse event and ensuring respect of subject right. ऐसा नहीं है कि किसी वॉलंटियर्स ने बोला कि मेरे को तो ये गोली खाने के बाद तुरंत सिर दर्द हो जाता है,
और डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं हो जाएगा ठीक. It should not be like that. He should be well aware that he should do a communication with the institutional ethical committee. He should have a habit of accuracy, completeness, legibility and timeliness of data. ऐसा नहीं है कि सपोज हीमोग्लोबिन आया 12.62 और उसने लिख दिया 12.6. नो, इट शुड हैव एक्यूरेट कंप्लीटनेस. 12.6 क्या, ग्राम पर डेसीलीटर या मिलीग्राम या क्या. लेजिबिलिटी, साफ साफ लिखा होना चाहिए. एंड टाइमलीनेस, ऐसा नहीं है कि आपने 12 बजे ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको 2 बजे. डॉक्यूमेंट कीपिंग, आपने वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखे हैं, आपने ईसीजी लिया है किसी पेशेंट का तो वो डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा. ड्रग अकाउंटेबिलिटी, सपोज फार्मास्यूटिकल कंपनी ने आपको 500 गोलियां दी कि आप इसको ट्रायल करिए और आपके पास ट्रायल करते करते 20 बच गई, 480 कंज्यूम हुई. आपसे जब मांगी गई 20 कहाँ हैं, उन्होंने कह दिया नहीं पड़ी होंगी हैं कहीं पे. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. प्रॉपर ड्रग अकाउंटेबिलिटी शुड बी देयर. हाउ मेनी यू रिसीव, हाउ मेनी यू गिवन टू नर्स, हाउ मेनी नर्स गिव टू हुज पेशेंट. किस दिन कोई पेशेंट नहीं आया था, वॉलंटियर नहीं आया था, वो ड्रग कहाँ गई, वो होना चाहिए. रिपोर्टिंग, कोई वॉलंटियर नहीं आया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, ड्रग आपने निकाल के देखी, उसका रैपर फटा हुआ था या उसका रंग बदल गया था, ये इट शुड बी रिपोर्टिंग. आर्काइंग, आप ईसीजी रिपोर्ट है, ब्लड प्रेशर रिपोर्ट है, उनका हीमोग्राम वाली रिपोर्ट है, इट शुड बी आर्काइंग. ऐसा नहीं है कि ट्रायल खत्म हुई और अगले दिन उसने बोल दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है. नो, इट शुड नॉट बी. There are certain obligation with the principal investigator. It should compliance with the protocol. जो प्रोटोकॉल में लिखा है आप उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते. Delegation without abdication. आप delegate करिए नहीं करिए, it should be written. Permission of monitoring, audit and inspection. ऐसा नहीं है कि ethical committee या regulatory वाले लोग आए और उन्होंने जहाँ पे clinical trial चल रही है उसमें allow नहीं किया. No, I will not allow you. No, he cannot say no. Now the sponsor, the pharmaceutical company who is sponsoring the events, they have certain responsibility. The medical director of the sponsor or who is negotiating with the physician and CRO, he should have a medical expertise. Qualified personals, investigators selection and agreement. आप investigator वही select करेंगे जो काम करने वाला हो. And you have to write down a agreement. Data monitoring, आप डाटा जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 12.6 हीमोग्लोबिन आया, बाद में उसने अपनी कन्वीनियंस के अनुसार उसको 10 कर दिया. नो, इट शुड बी मॉनिटर्ड. कम्युनिकेशन एंड नोटिफिकेशन, इट शुड बी कम्युनिकेटेड विद द इन्वेस्टिगेटर एज वेल एज फॉर द एथिकल कमेटी एंड रेगुलेटर्स. डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर, हाउ मेनी ड्रग्स यू हैड गिवन, हाउ मच मनी you had given to CRO, and archiving that data. Archiving is the most important things under GLP. They should have a quality assurance unit, full-fledged quality assurance unit, which includes study monitoring, training of monitors. ऐसा नहीं है कि एक क्लिनिकल ट्रायल में मेरे को मॉनिटर अपॉइंट किया एंड आई एम द होल सोल. नो, मेरे ऊपर भी मॉनिटरिंग है. सिस्टम वेरिफिकेशन, कहीं ऐसा तो नहीं है आपका कंप्यूटर 10 के 12 कर देता है बाद में, या आप जो स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं वो वेरीफाइड नहीं है, या डाटा चेंज हो जाते हैं. इट्स सिस्टम वेरिफिकेशन. या आपका जो बैलेंस है कहीं ऐसा तो नहीं है 10 मिलीग्राम को 12 मिलीग्राम वे कर रहा है. इट शुड बी प्रॉपर कैलिब्रेटेड. सोर्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपने कहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट किया है वो. ड्रग अकाउंटिंग, आपने कितनी दी कितनी वापस आई. फीडबैक टू इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर की कंप्लेंट है कि नहीं है. डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट, आपने कितना पैसा किसको दिया. ऐसा तो नहीं है कि आपने ज़्यादा पैसा दे के रिपोर्ट चेंज हो गई हो. दे हैव आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रायल डिज़ाइन. कितने दिन की ट्रायल होगी, किस किस पे होगी, कैसे कैसे होगी. प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, यू हैव टू गिव अ कंप्लीट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन. सपोज आप जेड ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल करना चाहते हैं, आप उसकी पूरी केमिस्ट्री बताएंगे, पूरा एनिमल डाटा देंगे, पूरा इंफॉर्मेशन देंगे. किस में घुलता है ये, किस में स्टोर करना चाहिए, ये फ्रिज में रखना चाहिए, फ्रीजर में रखना चाहिए, कहाँ से ये आया, सब कुछ आपको देना पड़ेगा. IEC अप्रूवल, एथिकल अप्रूवल इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पॉन्सर एंड इन्वेस्टिगेटर ऑल्सो. मैन्युफैक्चरिंग, आपने दवाई कहाँ बनवाई,
कैसे पैकिंग करी, कैसे लेबलिंग करी, कैसे कोडिंग करी, एंड हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट। मैं इस पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितनी भी क्लिनिकल ट्रायल होती हैं, इट इज़ आइदर सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड, मेनली डबल ब्लाइंड। आप अगर देखें, स्पॉन्सर ने कोई ड्रग दी, आई एम ए क्लिनिशियन, मैंने आगे पेशेंट को दिए क्लिनिकल ट्रायल को, और 15 दिन बाद सबका हमने ब्लड निकाला है और रिपोर्ट हमने दे दी है। इफ आई एम बायस, आई विल राइट ऑल पॉजिटिव थिंग्स। सो ब्लाइंडिंग शुड बी देयर। आप उसके कंपैरिजन में प्लेसिबो रखेंगे, या मैं जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड ड्रग रखेंगे ऑलरेडी मार्केट में, आप उनको मिला देंगे। कोडिंग, ब्लाइंडिंग, सिंगल ब्लाइंडिंग मीन्स पेशेंट डजंट नो कि मेरे को कौन सी ड्रग दी जा रही है, पर डॉक्टर नोज। डबल ब्लाइंडिंग में किसी को कुछ नहीं पता कि किस दिन किस आदमी को कौन सी वाली दी थी। इतना पता है सिर्फ उसको हरा कैप्सूल दिया, उसको लाल कैप्सूल दिया, डॉक्टर को भी नहीं पता। नहीं, इट इज डबल ब्लाइंडिंग। और बाद में डी कोडिंग होती है कि हरे में एक्चुअल में क्या था या लाल में एक्चुअल में क्या था। इट शुड बी देयर। एडवर्स इवेंट मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। कोई एडवर्स इवेंट होता है उसको मॉनिटर करो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू मॉनिटर दैट, टू कंट्रोल दैट। एडवर्स अगर रिपोर्टिंग है या कुछ, तो पेशेंट्स को क्या कोई कंपनसेशन देते हैं, क्या करते हैं? नहीं, एक नंबर वन इज इन्फॉर्म कंसेंट। यू कैनॉट अपॉइंट एनी पेशेंट, यू कैनॉट गिव एनी मेडिकेशन टू एनी पेशेंट और वॉलंटियर्स विदाउट टेकिंग अ इन्फॉर्म कंसेंट। उस इन्फॉर्म कंसेंट में उसकी लैंग्वेज में, सपोज आप उर्दू बोलते हैं, वो हिंदी बोलते हैं या एक बंगाली बोलते हैं, उसी लैंग्वेज में वो लिखा जाएगा। और उसमें ख़ास तौर से जो उसके मिनिमम पॉसिबल इफेक्ट हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं, मिनिमम रिस्क, वो उसमें मेंशन होगा कि 1 in 1 लाख एक आदमी को इस खाने से खुजली होती है। वो किसी की खुजली हो जाए 1 लाख में एक है, वो रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट क्या पेशेंट को उस का कंपनसेशन? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। इन्फॉर्म कंसेंट साइन होता है 2 गवाहों से, और अब कंपनियों में मेडिकल इंश्योरेंस हो गया है। अच्छा, मेडिकल इंश्योरेंस है, और सबसे पहले तो उसको खुजली को ठीक किया जाएगा, और उसको मेरे ख्याल से ये बताया भी जाता है कि ये हो सकता है आपको, ये उसमें बताया जाएगा मतलब। और अगर कुछ होता है, सबसे पहले ट्रीटमेंट है, उसके बाद में अगर ज़्यादा एडवर्स है, कुछ है, तो आप आईसीयू में भेजिए या फर्दर करिए। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पॉन्सर टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग, कि उनको कुछ होता है तो मेडिकली वो जो मेडिकल इंश्योरेंस में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग। एथिकल कमेटी मेडिकल इंश्योरेंस के पेपर देखती है, इंडिविजुअल उसके मेडिकल इंश्योरेंस के देखती है। सो इट शुड बी रिपोर्टेड। अगर वो ज़्यादा एडवर्स है, आप जोनल फार्मको विजिलेंस को भेजिए, नेशनल सेंटर को भेजिए, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को भेजिए, एंड इफ एनीथिंग एब्सोल्युटली न्यू, सो इट शुड बी रिपोर्टेड टू हायर सेंटर्स। And then report writing. Ethics committee, it is the most important committee which deals who permit that it should be carried out, or you go ahead. It is a board or a committee formally designed by an institution जहाँ पे clinical trial होना है वो बनाती है, to review, to approve the initiation, to conduct periodic review, and if possible अगर need arise he can stop that trial of biomedical research involving humans, all biomedical research. It should be multidisciplinary, independent and competent. Multidisciplinary means comprises of different field personnel expert, independent, किसी के अंडर काम नहीं करती। एम्स की जो एथिकल कमेटी है, इट्स नॉट वर्किंग अंडर डायरेक्टर, आपका सफदरजंग का वो है, उसके अंडर काम नहीं करेगी। एंड competent means they have the power to give permission or to stop. It is a heterogeneous group of at least 7 members, which can be up to 15 members. All should be qualified, experienced in their professional field, and proficient to review and evaluate both scientific and ethical aspect. And he should be familiar with the GCP guideline. Chairperson should be outsider, not from that institution.
मेंबर सेक्रेटरी एक होना चाहिए, एंड एटलीस्ट वन मेंबर इज अ बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट. वन मस्ट बी क्लिनिशियन, वन मस्ट बी लीगल एक्सपर्ट, वन मस्ट बी सोशल साइंटिस्ट और फिलोसफर और प्राइस, एंड वन मे बी अ ले पर्सन जिसको कुछ नहीं पता है कि क्लिनिकल ट्रायल क्या है. वो मेंबर कंपलसरी होना चाहिए. इसका क्या रोल होता है लास्ट वाले को जो आपने बताया कि वो कहीं पर भी कुछ कह सकता है कि भाई मैं तो, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, बताओ मुझे क्या है. आप 50 ml खून क्यों निकाल रहे हैं? Kind of a representative of the volunteer. You can रिप्रेजेंटेशन So- फ्रॉम द वॉलंटियर्स और फ्रॉम द सोसाइटी. from the society. Yeah. कि आप 50 ml क्यों निकाल रहे हो, मुझे नहीं पता, आप बताइए क्यों निकाल रहे हो. दर्द नहीं होगा, दर्द कितना होगा, एनीथिंग ही कैन आस्क, एनीथिंग ही कैन ऑब्जेक्ट. And the ethical committee, before the study begin, they have to do certain responsibility, like submission of research proposal. It is to be submitted to an ethical committee office, review, decision making process, issue and approval, and record keeping. एक ऑफिस होता है एथिकल कमेटी का, उसमें सब लोग अप्लाई करते हैं, उसका रिव्यू होता है, मीटिंग होती है, अप्रूवल देना नहीं देना, दैट दे विल डिसाइड. ड्यूरिंग द स्टडी, एक बार आपने अप्रूवल दे दी, ऐसा नहीं है कि एथिकल कमेटी का काम खत्म हो गया, आपने अप्रूवल दे दी काम खत्म हो गया. नो, ड्यूरिंग द स्टडी आल्सो दे हैव द पावर टू रिव्यू ऑफ अमेंडमेंट. ऐसा तो नहीं है प्रोटोकॉल में आपने बोला था कि मैं 5 ml ब्लड लूंगा और आपने बाद में बोला नहीं जी 5 ml से बात नहीं बन रही है, 6 ml चाहिए. सो रिव्यू होना चाहिए कि वाई 6 ml एंड इट शुड बी अप्रूव्ड, इट शुड बी गेट परमिटेड. रिव्यू ऑफ सीरियस एडवर्स इवेंट, ऐसा तो नहीं है कि 10 ह्यूमन बींग्स में 5 को एडवर्स इवेंट आए जा रहे हैं. सो इट शुड बी रिव्यूड. प्रोटोकॉल डेविएशन, कहीं ऐसा तो नहीं है क्लिनिशियन ने प्रोटोकॉल ही डेविएट कर दिया है. स्टार्टिंग में बोला था 200 ml पानी के साथ दूंगा और वो दूध के साथ देना चालू कर दिया है उसने. प्रोग्रेस, व्हाट इज अ प्रोग्रेस ऑफ स्टडी, ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने बोला था वो 1 साल में उसने चालू ही नहीं करे हैं एंड पेशेंट उसके आगे पीछे भागते जा रहे हैं. रिकॉर्ड कीपिंग, वेदर ही इज कीपिंग अ रिकॉर्ड और नॉट. आफ्टर द स्टडी, व्हेन द स्टडी इज कंप्लीटेड, स्टडी रिपोर्ट, he has to submit the study report in ethical committee. Post trial management, PMS study, publishing, publish किया कि नहीं किया, and again record keeping. So I can conclude this that no one or no study is above ethics and it should be a prospective, patient or volunteer, modern or alternative. आपने क्वेश्चन पूछा था कि alternative पे यूज होता है कि नहीं होता. It should be applicable to alternative medicine. Alternative means Ayurvedic, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथिक. इट कैन बी फॉर ड्रग्स और इट कैन बी फॉर प्रोसीजर्स. इट कैन बी फॉर न्यू ड्रग्स एंड ऑलरेडी मार्केटेड ड्रग, दोनों के लिए होगा. नई ड्रग नई इंडिकेशन के लिए होगा, ऑलरेडी मार्केटेड है उनका अगर नया यूज आपने करना है, नई फॉर्मुलेशन करनी है, नया कॉम्बिनेशन करना है, तब भी आपका स्टडी होगा. कमेटी शुड आल्सो इंक्लूड एक्सटर्नल साइंटिफिक एक्सपर्ट. एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सारे 70 साल के आदमी इकट्ठे कर लिए हैं या सारे मेल कर लिए. नो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज एंड जेंडर. Experts may be invited if need arises. Suppose a clinical trial is to be conducted in HIV patient, so patient group should be representative. एक HIV patient उसमें होना चाहिए. And list of members and their CVs are ready for inspection. All the ethics committee biodatas. एक रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए. एक रिपोर्ट बनेगी क्लिनिकल ट्रायल के विच इज़ टू बी सबमिटेड टू एथिक्स कमेटी एज वेल एज टू रेगुलेटरी अथॉरिटी. उसमें क्या क्या इसेंशियल डॉक्यूमेंट होने चाहिए. वन इज़ मॉनिटरिंग विजिटिंग रिपोर्ट, किस मॉनिटर ने कितनी बार जाके मॉनिटर किया एंड व्हाट आर देयर रिपोर्ट. सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, वेदर योर बैलेंस इज सर्टिफाइड NABL से एक्रेडिटेड है या GLP से एक्रेडिटेड है या कैलिब्रेटेड है, ISI है या आपके जिस मर्जी से, उनका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस. डी कोडिंग प्रोसीजर, आपने ब्लाइंडिंग करी कि हरा लाल किया, आपने उसका क्या प्रोसीजर किया. मतलब ऐसा तो नहीं है आपने हरे ज़्यादा रख लिए लाल कम रखे या प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करी या कंप्यूटर से डी कोडिंग करी, कैसे करिए उसका प्रोसीजर होना चाहिए. कम्युनिकेशन रिपोर्ट्स, सपोज लैब का एक इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा है, वेइंग मशीन, उसने बोला कि सर ये 10 ग्राम की जगह 12 ग्राम तोलता है ये. क्लिनिशियन इज नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव, सो ही शुड हैव अ कम्युनिकेशन रिपोर्ट कि मैंने बार बार बोला है उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं किया है.
साइंड इन्फॉर्म कंसेंट, पेशेंट का सारा साइंड इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए इन देयर लैंग्वेज. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ CRF करेक्शन, दिस इज अगेन एक आपने डॉक्यूमेंटेशन में कोई करेक्शन किया है, कोई वो किया, वो होना चाहिए. इंटरिम एनुअल रिपोर्ट ऑफ IRB, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड की क्या रिपोर्ट थी. सोर्स डॉक्यूमेंट, कहाँ से क्या चीज आई है उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए. एंड सीरियस एडवर्स इवेंट नोटिफिकेशन. सब्जेक्ट स्क्रीन एंड एनरोलमेंट लॉग्स, आपने सब्जेक्ट को कैसे स्क्रीन किया, कैसे आपने बोला कि यस इट इज अ फिट पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन अ क्लिनिकल ट्रायल. आपने उसका ECG लिया, आपने उसको बोला कि 50 से 70 किलो का वजन होना चाहिए, ब्लड प्रेशर इतने होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपने क्या क्राइटेरिया रखे थे जब आपने सिलेक्शन किया वॉलंटियर्स का. ड्रग अकाउंटेबिलिटी लॉग, ड्रग कितनी आई, कितनी खर्च हुई. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट डिस्ट्रक्शन, आपने कुछ रद्दी फाड़ी, उसका क्या रिकॉर्ड है, कैसे फाड़ी आपने. ज़्यादातर आप भी एग्जामिनेशन सेल में कुछ फाड़ते होंगे ना, क्वेश्चन पेपर वगैरह, कैसे फाड़ते हैं. डिस्ट्रक्टर, आग लगाई आपने, क्या लगाई. साइंड बाई इन हुज परजेंस, ये होना चाहिए. इन्वेस्टिगेटर और IRB फाइनल एंड क्लिनिकल स्टडी फाइनल रिपोर्ट, क्लोज आउट रिपोर्ट, these are one at the same thing, and then an audit certificate that all the financial part is clear. Financial agreement, what was the financial agreement you signed between a sponsor and a CRO. Insurance statement, इंश्योरेंस क्या किया था पेशेंट का, वो स्टेटमेंट. रेगुलेटरी अप्रूवल, वेदर यू हैव बीन अप्रूव्ड बाय द FDA और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और नॉट. इन्वेस्टिगेटर्स बायोडाटास, लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन एंड नॉर्मल वैल्यूज, अगेन CAL-BL और GLP सर्टिफाइड. सैंपल प्रोडक्ट लेबल, प्रोडक्ट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन. It is now mandatory under the GLP program that all the instrument should be operated against standard operating procedure. Suppose मुझे कंप्यूटर खोलना है, उसके सामने एक SOP लगा होना चाहिए. पहले मैं स्विच दबाऊंगा, स्क्रीन देखूंगा, स्क्रीन पे स्कैन करूंगा, ये करूंगा. इट शुड बी क्लियरली रिटन. शिपिंग रिकॉर्ड, आपकी जो ड्रग थी या आपने जो लेबोरेटरी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल किया वो कहाँ से आया. यू कैनॉट से मेरे सप्लायर ने दिया, नो. सप्लायर मे बी फ्रॉम बेंगलोर, मैंने ऑर्डर दिया, दिस इज अ कॉपी ऑफ दैट, द मेन कंपोनेंट इज अ बेंगलोर, उसको मैंने चेक से एडवांस पेमेंट किया. बेंगलोर में मिस्टर जेड ने उसको कुछ संधू ट्रेवल से ट्रक में भेजा, ट्रक दिल्ली में बंसल ट्रैवल को हैंड ओवर किया, बंसल ने मेरे को दिया. इट शुड हैव अ प्रॉपर शिपिंग रिकॉर्ड, किस आदमी ने किस में करके कैसे कैसे दिया. इसका जो मेन पर्पज है वो ये है, सपोज योर ड्रग इज अ थर्मोलेबाइल, कि आपकी ड्रग 4 डिग्री टेम्परेचर ऊपर होते ही खराब हो जाती है. सो वेदर इस सारे शिपिंग में क्या कोल्ड चेन मेंटेन की गई या नहीं की गई. क्या संधू के पास जो वैन थी वो कोल्ड स्टोरेज वाले थी कि नहीं थी. क्या जो बंसल ने यहाँ पे देखा क्या वो मेंटेन था कि नहीं था. क्या सुरेंद्र सिंह ने जो देखा उसके पास में कोल्ड स्टोरेज था कि नहीं था. अब जो मैंने बोला कि लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन या प्रोडक्ट हैंडलिंग वाला, सपोज आपने 9 बजे लिख दिया कि 9 से 30 के बीच में लाइट नहीं थी. सो वेदर 4 डिग्री वॉज मेंटेन्ड और नॉट. सो it gives an idea if anything goes wrong with any of the patient or any of the data, we can easily check out कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है. Randomization, सपोज आपके पास में 20 पेशेंट आए, पहले 10 को आपने एक ड्रग देनी है जो आपने लाल हरे करे थे, और बाकी 10 को एक हफ्ते बाद लेनी है. बट पहले 10 कौन से आएंगे. आपने एक कॉइन ले लिए, उसमें आपने 20 कॉइन करे, आपने उल्टे डाल दिए. जो हेड आ रहे हैं वो पहले आएंगे, टेल वाले पीछे जाएंगे. आपने क्या मेथड अपनाया, रैंडमाइजेशन कैसे किया, मतलब कि कौन से वाले ग्रुप पहले जाएंगे, कौन से वाले बाद में जाएंगे. प्रोटोकॉल, व्हाट वाज योर प्रोटोकॉल. इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर एंड इसेंशियल डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट. दिस इज अ डॉक्यूमेंटेशन गाइडलाइन विच इज मेंशन इन अ GCP. हु कैन पार्टिसिपेट. क्लिनिकल ट्रायल में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है. एनीवन कैन पार्टिसिपेट. आप ब्लैक, वाइट, एशियन और अमेरिकन और अफ्रीकन, anyone can participate according to
जीसीपी गाइडलाइन। जीसीपी में एक अलग से प्रोविजन भी है जहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ स्पेशल पॉपुलेशन इज देयर इन अ क्लिनिकल ट्रायल। वन इज अ प्रेग्नेंट वोमेन, अनदर इज अ चिल्ड्रन। बच्चों पे क्या ये ज़्यादा कुछ रिस्की नहीं होता है? रिस्की होता है, उसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, क्लोज मॉनिटरिंग है। इट शुड इंक्लूड वन पीडियाट्रिशियन होना चाहिए, वो होना चाहिए। देयर इज अ सेपरेट गाइडलाइन, मैं उसमें ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। एंड प्रिजनर पे भी देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन एंड अदर्स। प्रिजनर पे स्पेशल प्रोविजन, देयर इज अ, they are categorized as a special population under GCP guideline। एक नॉर्मल है जो डॉक्टर ने डिसाइड किया कि ये हमारे वॉलंटियर्स होंगे, ये हमारे स्पेशल किस कैटेगरी से हुए? दे आर प्रिजनर इसलिए हुए कि पहले ये होता रहा था कि आप यू कैन फोर्स प्रिजनर। अच्छा, उस सेंस में। तो यू कैनॉट फोर्स एनीबॉडी, सो इट इज कैटेगराइज्ड एज अ स्पेशल पॉपुलेशन। प्रेग्नेंट वोमेन ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। कोई ऐसी ड्रग नहीं होनी चाहिए कि विच कैन कॉज टेराटोजेनेसिटी। इट इज़ अ टर्मिनोलॉजी दैट किसी भी ड्रग से अगर फीटस को कोई प्रॉब्लम होती है, फीटस जैसे मैंने पीछे दिखाया कि फोकोमिलिया टाइप का कुछ होता है, तो प्रेग्नेंट पे वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। चिल्ड्रन पे ऐसा नहीं हो कि उनकी ग्रोथ में कोई फ़र्क पड़े, म्यूटाजेनेसिटी कुछ हो। एंड प्रिजनर पे फोर्स से आप कुछ नहीं कर सकते। कंट्रोल में कई बार प्लेसिबो भी देते हैं कि उसी टाइप की, मान लीजिए सफ़ेद गोली है तो उसी सफ़ेद गोली वैसा ही बनाया जाएगा जिसमें कि फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होंगे, एक्टिव ड्रग नहीं होगी, बट इनर्ट सब्सटेंस होंगे, बट सामने से देखने पे दोनों एक जैसी लगेगी। एंड कई बार ऐसा होता है 20 से 30% लोगों को प्लेसिबो से भी फ़ायदा होता है। साइकोलॉजिकल भी कह लीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े यूज टू पेशेंट हो जाते हैं कि नहीं गोली खानी ही ज़रूर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी जो ड्रग है उसका प्लेसिबो इफेक्ट तो नहीं है। टू रूल आउट दैट एंड टू कंफर्म कि दैट योर इन्वेस्टिगेशनल ड्रग हैज़ अ फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी, either it should be combined with a placebo to rule out possible and compare with the standard already existing drug कि आपकी जो ड्रग है स्टैंडर्ड एग्जिस्टिंग ड्रग के मुकाबले कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है या उसके पैरेलल है। Why the randomization important? I was talking about this so that all the groups are as alike as possible. There should not be any bias and it provides the best way to prove the effectiveness of new agent or intervention compared to placebo or compare with the standard drug. The most important thing is a patient protection. If anything goes wrong, if any serious adverse event is there, so how the patient rights can be protected. One is by the informed consent. Every clinical trial must be accompanied by the signed informed consent with 2 witnesses before enrolling any patient or any volunteer, जिसमें कि ये साफ साफ लिखा होना चाहिए कि जो लीस्ट पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट हैं उनके बारे में भी ज़रूर बताया जाना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज इंश्योरेंस। इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग उसका मेडिकल इंश्योरेंस कितना होगा और उसको कंपनसेशन कितना दिया जाएगा। 50 फार्मास्यूटिकल कंपनी जो एक प्रोडक्ट के साथ में आ रखी है, से नया कोई भी लाइक लीवोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है, और एक और कंपनी है जो मार्केट में लॉन्च करना चाहती है अपने ट्रेड नेम के साथ में, सो ही हैज़ टू परफॉर्म बायोइक्विवेलेंस स्टडी। बायोइक्विवेलेंस में क्या होता है, आप उनकी ड्रग भी देंगे, स्टैंडर्ड ड्रग, आप प्रोटोकॉल देंगे, प्रोटोकॉल सबमिट करेंगे कि मैं अपनी ड्रग को लॉन्च करना चाहता हूँ, बायोइक्विवेलेंस स्टडी, एंड आई विल कंपेयर माय बायो अवेलेबिलिटी विद द रेनबैक्सीज प्रोडक्ट। उसमें 14 वॉलंटियर्स लेने होते हैं। पहले एक दिन रेनबैक्सी का दिया जाएगा, उसको वॉश आउट देके 1 हफ्ते बाद वो दूसरी कंपनी का दिया जाएगा, और उनका ब्लड पैरामीटर देखने होते हैं। एक टाइम पे वो घुल रहे हैं, एक टाइम पे वो शरीर में रह रहे हैं, एक टाइम पे वो एक्सक्रीट कर रहे हैं, एंड व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग अवेलेबल इन अ ब्लड। फार्माकोपिया में एक लिमिट लिखी हुई है कि इट शुड नॉट बी +- 5%। मान लीजिए स्टैंडर्ड ड्रग 100 मिलीग्राम की है
तो आपकी 95 तो होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि उसका 80% तक आ गई है। सो दैट मीन्स योर ड्रग इज नॉट बायो इक्वलेंट। बायो इसलिए वर्ड कर रहे हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में है, अदरवाइज इक्वलेंट वर्ड। सो नेक्स्ट थिंग है, कितनी बार खून निकालेंगे, खून निकाल रहे हैं या आपका प्रेशर चेक कर रहे हैं या कुछ एंडोस्कोपी कर रहे हैं या कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, इट शुड बी क्लियरली रिटन इन अ एग्रीमेंट। जो आपका प्रोटोकॉल है या आपका जो इंश्योरेंस स्टेटमेंट है कि हम आपका 20 बार प्रिक करके 5-5 ml ब्लड निकालेंगे। सो इट कम्स टू 100 ml। सो 20 प्रिक का कितना दर्द हुआ उसके अकॉर्डिंगली डिसाइडेड है, और कितना ml ब्लड निकाला। नए गाइडलाइन के अनुसार आप 400 ml से ज़्यादा ब्लड एक वॉलंटियर्स का नहीं निकाल सकते ओवर ए पीरियड ऑफ 3 days। एक दिन में ये वो है, चाहे वो 380 ml हो या उससे ज़्यादा। एंड अकॉर्डिंगली द कंपनसेशन इज टू बी डिसाइडेड पर प्रिक और पर ml ऑफ ब्लड। एंड ज़्यादा कुछ हो जाता है, सीरियस एडवर्स इवेंट हुआ या डेथ हुआ, तो इट शुड बी क्लियरली रिटन इन पेशेंट प्रोटेक्शन राइट और इंश्योरेंस पेपर कि उसको कितना क्या मिलेगा, एंड हु इज अ लीगल नॉमिनीज ऑफ दैट। सो द पेशेंट राइट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय इन्फॉर्म कंसेंट, कि आपको पहले बता दिया गया था कि आपको ये प्रॉब्लम होगी, सो दैट देयर इज नो लीगल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज साइंटिफिक रिव्यू। बीच बीच में साइंटिफिक रिव्यू होता रहा था कि भाई इस की वजह से प्रॉब्लम हुई है, या पेशेंट को पहले से ही कोई प्रॉब्लम थी, या पेशेंट को साइमल्टेनियसली डेवलप हुआ। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड के IRB ने भी ये रिव्यू किया था पीरियडिकली कि क्या ड्रग के साथ प्रॉब्लम है या क्या पेशेंट के साथ प्रॉब्लम है। एंड अगेन अ डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड। सो देर इज अ 3 or 4 level type of protection is there or monitoring is there, and above all the ethics committee is there. So by this the patient rights can be protected. So these are the various stakeholders, their responsibilities, their duties and their commitments with the patient, and after that the drug can come in a market if everything comes in goes in a smooth manner. अगर सब ठीक ठाक चलेगा तभी they can apply to the regulatory authority for marketing a new drug. So thank you very much. I would like to extend my thanks to the eminent speakers here, Dr. Surinder Singh from AIIMS and Professor Faruqi from School of Sciences at IGNOU, and also to all the viewers as well as all the staff at the regional center and the staff of Electronic Media Protection Center here for their support and for making it possible for us to reach you. Thank you very much.